Okay, giving heading differentiation of a function in a parametric form. Parametric form में होता है कि sometimes लिखिए the two variable is linked up by the third variable. दो वेरिएबल डायरेक्टली लिंक नहीं रहते हैं, उनको थर्ड वेरिएबल लिंक करता है आपस में. And this third variable is called parametric. इस थर्ड वेरिएबल को हम पैरामीट्रिक बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, x is with respect to the third variable t, y is also with respect to the third variable t. So get the value of a dy upon dx. We differentiate x with respect to the parameter f dash t and the differentiation of y with respect to the parameter t. So therefore, to get the value of a dy upon dx, we do dy upon dt multiply with dt upon dx. इसे हम कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ डिफरेंशिएशन. Good evening, sir. From your NCERT is example 31. इसमें रिस्पेक्टेड पैरामीटर क्या है? x और y का थर्ड पैरामीटर, थर्ड वेरिएबल थीटा. पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन with respect to the third. So x ki with respect to the third variable, the differentiation of cos. Similarly, the differentiation of y with respect to the third variable, the differentiation of sine is. And what you have to find out? dy upon dx, which is equal to dy upon d theta multiply with d theta upon dx. Cos upon sine is cot. Now you can try the example 32 by yourself. Okay, what is the parameter with respect to the two variable? T. The differentiation of x with respect to the parameter t, the differentiation of t square is 2t and then the differentiation of base is 1. क्योंकि आप with respect to t करने हैं. Similarly, y with respect to t, the differentiation is 1. Now you have to find out the value of dy upon dx, which is dy upon dt multiply with dt upon dx. Your answer is 1 upon t. टैग करिए इसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पल 33. नाउ एक्स next 33. So the differentiation of x with respect to the another variable theta. Yes, the differentiation of theta is, the differentiation of sine is, and theta 1. Similarly, the differentiation of a y with respect to theta, the differentiation of 1 0. Okay, plus sine theta.
You have to find out the value of a dy upon dx, which you can find out by multiplying dy upon d theta into d theta upon dx, which is a sine theta multiplied with 1 upon a 1 plus cos theta. Here is your reference, your trigonometric formula, where sine 2 theta is written as 2 sine half of the angle, cos half of the angle, reference for this question. And your formulas जिन्हें आप भगवान बोलते हैं, and 1 minus cos 2 theta 2 sine square half of the angle. Okay, so a से a cancel, in place of sine what you have to write down 2 and in denominator 1 plus cos theta cancel, 1 cos will cancel. Finally, the answer in your NCERT book is tan theta upon 2. Next page and the next question. The next is, this one is from your NCERT exemplar and example number 12. Mark it important. So this time the parameter or the third variable जो इन दोनों को relate कर रहा है, that is theta. So the differentiation dx upon d theta. Okay, first the differentiation of power and then the differentiation of a base. The differentiation of secant theta is now there comes y. First with respect to, so the power and then differentiation of base. What is the differentiation of a tan? Now he asks dy upon dx, which is dy upon d theta, which is multiplied with d theta upon dx. That is 3a tan square theta secant square theta is divided by 3a secant square theta, or you can say secant cube theta, by the way. So you cancel, secant square cancel, 1 tan will cancel, you are left with tan theta upon. Convert the, if you want to substitute the value theta pi upon 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सब्सिट्यूट कर लीजिए. लेकिन अगर आप इसे इजी करना चाहते हैं तो tan is written as sin upon cos, and whereas secant is a reciprocal of a cos, so you are left with only sin theta. Now here is your question, that you have to find out the value of a dy upon dx when theta is equal to pi upon 3. 10th की ट्रिग्नोमेट्री है, आई थिंक बेटर आप जानते होंगे क्या आंसर रहेगा. ऊंची बोलना जरा. This one is from your NCERT exemplar.
इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 34। ये बहुत बार डाउट में आप क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर आप इसे एज अ डाउट लेके आए और अगर आप बुक ओपन करें तो इसका सॉल्यूशन बहुत डिफरेंट वे से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहीं पर भी पैरामीट्रिक नहीं है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक सिंपल डिफरेंशिएशन है, इसमें कोई तीसरा पैरामीटर नहीं है। क्वेश्चन अगर आप इसे सिंपल करेंगे तब भी आपके पास वही सेम आंसर आएगा जो बनता है। इसकी खासियत ये है कि इससे हम टेंथ की टी रेशियो से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और टेंथ की वन ऑफ योर फेवरेट टी रेशियो जो है वो इसे बड़ी इजीली सॉल्व करती है, एंड दैट टी रेशियो इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे अगर हम रेफरेंस लें तो इसकी फॉर्मेशन के लिए मुझे x को a साइन थीटा होल क्यूब रखना पड़ेगा। चेक करिए, ये 3 and 3 कैंसिल ओवर, ए स्क्वायर आ जाएगा। आप इसे चेक कर सकते हैं। कुछ जगह पर इसे कॉम्प्लिकेट ना करते हुए हम कांस्टेंट को नहीं भी इन्वॉल्व करते तो ए साइन क्यूब थीटा भी ले सकते हो, और y को a कॉस क्यूब थीटा। नाउ सी हाउ इट वर्क। x की जगह पे वैल्यू रखी हमने a साइन क्यूब थीटा जिसकी होल पावर 2/3 है। द वैल्यू ऑफ अ y इज a cos क्यूब थीटा whose whole power is 2/3, a raised to power 2/3। जरा सॉल्व कराएंगे, मुझे बताएंगे a की पावर क्या आएगी। सॉरी जी, 2/3, और 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो राइट a raised to power, and here it is equal to a raised to power 2/3 कट हो जाएगा, और साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखिए ये कहीं पर भी डिफरेंशिएशन नहीं हुई है, आपने इसे जस्टिफाई किया है। यहां पर पहले तो क्लियर कर लेना कि आपकी ये सब्स्टिट्यूशन राइट है। अगर ये सब्स्टिट्यूशन राइट है तभी आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए हो। लेकिन जब आपने सब्स्टिट्यूट किया तो आपने ध्यान दिया होगा, आपने इसे पैरामीट्रिक बना दिया। तो x इज पैरामीट्रिक विद रिस्पेक्ट टू, तो थोड़ा शॉर्टकट चलें तो विद पावर, एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ अ साइन, राइट। सिमिलरली अगर y के साथ डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो फर्स्ट विद पावर, और cos की डिफरेंशिएशन, राइट। अब चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि फाइनली अगर आप चेक करें तो उसने आपसे ये सब ना छोड़ के ही सिंपली आस्क यू द वैल्यू ऑफ अ dy/dx, which you can find out dy upon d theta into d theta upon dx. The dy upon d theta is minus 3a cos square theta sin theta, and the value of a d theta upon dx is 3a sin square theta cos theta। क्या आप बता सकते हैं कटिंग करके क्या है आपके पास? माइनस आप कॉट मत रखिए जी, देखिए मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने इसका आंसर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा छोड़ दिया, अब अगर आप आंसर कॉट थीटा बोलते हैं तो आपको पता है कि थीटा आपकी सपोजिशन है, क्वेश्चन में कहीं थीटा नहीं है। अंडरस्टूड? सो यू हैव टू रिमूव द थीटा, थीटा आपकी सपोजिशन नहीं है। तो आप इसमें ऐसा करिए कि यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अ कॉस थीटा फ्रॉम हियर। कितनी आएगी? Okay, cube root of y upon a. Similarly, you can get the value of a sin theta here and put the value of a cos, the value of a sin, rest I know, कैलकुलेशन में आप मास्टर होंगे। a कैंसिल होता दिखाई दे रहा है आपको, and come to your NCERT book question answer example 34 from your NCERT, and you can tag it as a important.
फिर भी अगर आपका किसी का क्वेश्चन रहा कि ये मुझे एग्जाम में नहीं याद रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसकी सिंपल डिफरेंशिएशन भी यही आंसर देती है, बट बहुत लेंथी है। और खुद एनसीईआरटी ने इसे खुद ब खुद पैरामीट्रिक में रखा हुआ है, यहां से भी आपको समझ आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए वापस लेके जा रहा हूं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 5.3 एक्सरसाइज। वहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो सैंपल पेपर और बोर्ड में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, या तो एमसीक्यू या 2 मार्क्स में, जिसमें से आप ये क्वेश्चन की हेडिंग है, उसमें 44 टू 48 सारे पैरामीट्रिक हैं, जिसमें से दिस वन इज मोर प्रेफरेबल। टेक योर टाइम, ठीक से करिए, आपके पास आंसर जरूर आ जाएगा। और इसका आंसर कॉट थीटा रहेगा जी। दिस इज द आंसर, टेक योर टाइम और अपना बेस्ट कर दीजिए। So the differentiation of x with respect to theta, Mr. Shivam, the differentiation of cos first with power, then differentiation of base। क्या बता सकते हैं आपने क्या कॉमन चूज किया? ओनली साइन, -3 sin theta, and then you are left with 1 minus 2 cos k theta. The next one is with a y, dy upon d theta. The differentiation of sine first with power and then differentiation of sine। क्या कॉमन लिया? हाँ जी, 1 minus 2। He asking for dy upon dx in a parametric, which is equal to dy upon d theta into d theta upon dx. So dy upon d theta is 3 cos theta 1 minus 2 sin square theta divided with -3 sin theta and 1 minus 2 cos square theta। द मेन थिंग कि आप कॉट पे कैसे पहुंचते हैं वो एक अलग पार्ट है, मुझे पता है डिफरेंशिएशन आप कर ली होगी आपने। गिव मी सब सजेशन कि आप इसे वहां तक कैसे पहुंचाएंगे। मैं आपको इसकी सपोर्ट के लिए फार्मूले देता हूं, जिनकी वजह से ये क्वेश्चन पेपर में रहता है, क्योंकि इसे अगर एमसीक्यू में रख दें तो आप अपनी मर्जी से अपने सॉल्यूशन को अपनी जगह पे नहीं छोड़ सकते, आपको अपने सॉल्यूशन को कैरी करना होगा, जिसमें ये cos 2 थीटा के दो फार्मूलाज इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। cos 2 थीटा is 1 minus 2 sin square theta। So 1 minus 2 sin square theta is कितना आया? Cos twice the angle, okay। And 1 minus 2 cos square कोई फार्मूला नहीं है, अगर आप देखें तो 2 cos square है, तो आप एक बार फिर से नेगेटिव कॉमन लेंगे एंड आप इसे लिखेंगे 2 cos square थीटा, ओ सॉरी 2 cos square थीटा -1, नेगेटिव कॉमन लेने पे। अब आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी साइन थीटा ऑलरेडी कैंसिल है, ये आ जाएगा cos 2 थीटा, क्लियर, बोथ विल कैंसिल, 3 ऑलरेडी कैंसिल है, cos अपॉन साइन इज विच इज योर आंसर। अब हम अपनी एनसीईआरटी पे वापस चलते हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। नाउ विद योर एनसीईआरटी
एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिर्फ नोट डाउन करेंगे जी। आंसर टी स्क्वायर, नोट डाउन द आंसर। यस, सिंपल क्वेश्चंस हैं। सेकंड जो बहुत ही सिंपल है वो दे रहे हैं जी आपको, घर से आप इन्हें कंप्लीट करके लेके आएंगे। एंड द आंसर फॉर दिस वन इज बी अपॉन ए। डाउट आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द पैरामीटर इज t and answer is -4 sin t. And the last one, fourth, whose answer is -1 upon t square. This one is not your homework. ये आप मुझे अभी करके दे रहे हैं। इससे ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन अभी above the screen आप कर चुके हो। 46 from your NCERT example. This one is from your NCERT exercise 5.6 question number 5. कंटिन्यू करिए इस क्वेश्चन को। बेस्ट पार्ट है इसका, मैं आंसर आपकी स्क्रीन पे रख देता हूं। टेक योर टाइम, आई होप सो आप इस आंसर तक पहुंच जाएंगे। किसके पास नहीं आया? द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डू द डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल। जो भूल गए हैं उनके लिए बता दूं मैं, माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, और यहाँ 2 सेपरेट हो जाएगा और थीटा 1 हो जाएंगे। तो ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू को प्लीज मैं पहले लिख दे रहा हूं। याद है कि 2 sin 2 थीटा पॉजिटिव को पहले रखा है और नेगेटिव को बाद में। सिमिलरली विद द y, the differentiation of sine, here again the differentiation of a sine, and again I repeat, do not forget to do the differentiation of angle. सेम हियर, पॉजिटिव वैल्यू को मैं पहले रख रहा हूं जो कि ऑलरेडी पहले ही पॉजिटिव है, एंड 2 cos 2 थीटा। रेस्ट तो सिंपल सभी को पता है कि ही इज आस्किंग फॉर dy अपॉन dx, और इसमें ऐसी कोई कटिंग भी नहीं हुई है कि आपके आंसर में कुछ चेंज आएगा। सिमिलरली आप एज सच भी वैल्यू रखेंगे, देन यू विल गेट दिस सेम आंसर एज अ रिजल्टेंट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कुछ है कैलकुलेशन को तो वो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में है। रीजन, मिस्टर आरव, सी हियर, मिस्टर आरव, dx अपॉन d थीटा a, कितनी डिफरेंशिएशन है इसकी? आपने लिखी है साइन की। ओके, सो आरव dy अपॉन d थीटा a, what the differentiation of 1 is 0, and the differentiation of cos is, यहीं पर चेंज है, dy अपॉन d थीटा इंटू d थीटा अपॉन dx, सो माइनस a sin थीटा एंड a 1 minus cos theta. Again for your reference, the formula from your trigonometry are 2 sin half angle cos half angle, and the second one जिसे आप भगवान बोलते हो 2 sin square half of the angle. Apply both of them
in numerator it will become 2 sin half cos half, or in denominator 2 sin square half. आफ्टर कैंसिलेशन मैं यहाँ कटिंग नहीं करूंगा, आपको क्लियर हो गया होगा. दिस इज कॉट थीटा अपॉन 2. इस क्वेश्चन को रखने की एक ही वजह रहती है, आपका पेन वर्क चेक करना. एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 7. प्लीज अपनी कैलकुलेशन को ठीक से करना. इट टेक्स अ टाइम एंड लॉट मच ऑफ अ टाइम. बाय द वे, हैव अ पेशेंस. कोई सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, एक सिंपल सादी कैलकुलेशन से ये आता है. और ये भी याद रहे कि इसमें कोशेंट रूल लग रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. और उसमें भी फिर फर्दर रूट की डिफरेंशिएशन ध्यान से करिए, पावर की डिफरेंशिएशन ध्यान से करिए. एंड वन थिंग टू रिमेंबर, cos 2t याद रहेगा. cos की डिफरेंशिएशन साइन बोलनी और एंगल 2 की भी करनी है. ओके, टेक योर टाइम. टी अगर आपको सरप्राइज कर रहा है तो मैं आपकी सपोर्ट के लिए ये 3 थीटा के फॉर्म में आपकी स्क्रीन पे रख दी है. ये रीजन है कि यहाँ पे 3 थीटा आपके पास आ रहा है. द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा एंड द फॉर्मूला ऑफ कॉस 3 थीटा, जिसके लिए ये खास है क्वेश्चन. अपने आप 3 नहीं आएगा, 3 थीटा का फॉर्मूला कंप्लीट होगा आपके पास. यस. ओके जी, मैच कर सकते हो. डी एक्स अपॉन डी टी, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. इसे शॉर्ट कर दे रहा हूं, डिनोमिनेटर स्क्वायर होने पे रूट रिमूव हो जाएगा सिंपली. डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके, सो पावर की डिफरेंशिएशन, द डिफरेंशिएशन ऑफ पावर क्लियर. देन साइन की डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट. एंड देन द डिफरेंशिएशन ऑफ बेस. मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे. इसे प्रॉपर्ली लिख लेते हैं. 3 पहले आएगा, देन वी राइट डाउन द अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियोज व्हिच इज sin square t एंड दिस इज cos t माइनस sin cube t upon 2 under root of cos 2t. okay, the differentiation of cos, आई होप सो आप एंगल की डिफरेंशिएशन करना नहीं भूले होंगे. एंड डिनोमिनेटर स्क्वायर. द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, लुक एट द स्क्रीन. 2 से 2 कैंसिल. क्या आपने न्यूमरेटर में एलसीएम लिया? तो दिस रूट विल रिमूव्ड. माइनस माइनस प्लस साइन 4t, और आपके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी cos 2t चल रहा है. डू यू सजेस्ट कि आप क्या कॉमन लेना चाहते हैं? अच्छा, ये 2t है, सॉरी. ओके, कुछ कॉमन लेना है? क्या बात कर रहे हैं? क्या कॉमन? ओनली साइन और साइन स्क्वायर. साइन स्क्वायर करवाइए हेल्प. क्या बचता है? प्लस
कुछ और बेटर इसमें अगर आप सजेस्ट कर सकते हो? और कुछ नहीं आ रहा? और नहीं कॉमन आ रहा। एक कोशिश यहाँ करिए बच्चा, इसे ब्रेक करिए। मैं यहाँ लिखे जा रहा हूँ साइन स्क्वायर टी 3 cos 2t cos t plus sin t. What is the formula of sin 2 theta? राइट। अब आप कह सकते हो कि आपके पास एक cos t भी कॉमन है। ओके, एक अटेम्प्ट और, sin square t and cos t is also common. Now you are left with 3 cos 2t and 4 sin square t. Am I right? And cos 2t under root of cos 2t. 2 आया, हाँ, this is 2. Okay, done. Now you start with y. So dy upon dt, denominator, differentiation of numerator minus numerator, differentiation of denominator. Upon denominator square. So first with power, फिर cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस cos क्यूब टी। रेस्ट की डिफरेंशिएशन हम लेफ्ट से ही उठा लेते हैं। उसमें आपको पता होगा कि इसकी डिफरेंशिएशन में पहले रूट की डिफरेंशिएशन हुई थी, फिर cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t हुई थी, फिर एंगल की 2 हो रखी थी। इसलिए मैं इसे ज्यादा नहीं लिखूंगा, हमारे पास जगह भी शॉर्ट है, आप लेफ्ट से उठा सकते हैं। अगर आप न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हैं जो कि अंडर रूट कॉस 2t है, तो ये आपके पास आता है -3 साइन टी कॉस स्क्वायर टी कॉस 2t, और यहाँ माइनस माइनस प्लस करके कॉस क्यूब टी। मैं आपको जगह ना होने की वजह से पहले हाईलाइट कर दे रहा हूं इस फार्मूले को, जिसे हमने प्रीवियस में भी लिखा था साइन 2 थीटा को 2 साइन टी कॉस टी, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी आपके पास कॉस 2t चल रहा है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आप साइन टी और कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले लें। ऐसा करने पे -3 cos t +2, नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखते हैं, साइन टी एंड कॉस स्क्वायर टी कॉमन लेने के बाद 2 cos स्क्वायर टी अपॉन अंडर रूट cos 2t cos 2t आ गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पार्ट पे, जो हमसे पूछा गया कि व्हाट इज dy अपॉन dx, that is dy upon dt into dt upon dx. So dy upon dt, तो ये है मल्टीप्लाई विद द रेसिप्रोकल cos 2t अंडर रूट cos 2t डिवाइडेड विद
1 कॉस इसके साथ कैंसिल, एक साइन यहां कैंसिल, आपके पास कॉस टी अपॉन साइन टी और ब्रैकेट में -3 कॉस 2t प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी, 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। जहां तक 3 थीटा की बात आपके साथ बार बार की जा रही है, दैट होल इज अपॉन द फार्मूला, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी स्क्रीन पे cos 2 थीटा के फार्मूले रखे थे, अगेन वहीं से ही इन्हें फिर से पुश किया गया है। cos 2 थीटा के फार्मूले इज इक्वल टू, टॉप से पिक कर सकते हो, सो cos 2t cos 2 थीटा, इसे लगाइए, क्या फार्मूला लगाएंगे जी? 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल -1, हाफ कर दिया ना 2t का। यहां पर इन टर्म्स ऑफ साइन यूज करिए, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी। लिख लीजिए, थोड़ा सा अनइवन लगा होगा, आप टाइम ले लीजिए, लिखने के बाद स्क्रीन पे आइए, लिख लीजिए प्लीज। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद 3 - 6 + 2 -6 + 2 अब आप कॉस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां आप डिनोमिनेटर में साइन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप चेक करिए। अब ये फार्मूलाज हैं जिसमें न्यूमरेटर में कॉस का फार्मूला तब बनता है अगर आप नेगेटिव कॉमन दें, 4 cos क्यूब टी - 3 cos टी, अब ये फार्मूला बनता है आपका। और डिनोमिनेटर में ऐसा है 3 sin थीटा -4 मल्टीप्लाई पे क्यूब था, सॉरी, 4 sin क्यूब थीटा, so this is cos 3 theta, this is sin 3 theta, which is cot 3 theta आंसर। बहुत जने पूछते हैं पेपर में आएगा, डोंट नो, आने के आसार इसके इसलिए नहीं क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन उस वेटेज में फिट नहीं होता, लेकिन बोर्ड में चैप्टर वेटेज दी जाती है, क्वेश्चन की वेटेज कभी नहीं दी जाती। तो कहीं उसका दिल किया कि मुझे इसे रखना ही है तो आप मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में है। एक्सरसाइज 5.6 एंड योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 को आप इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड के टैग में ले सकते हैं, इसी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो काफी बार ये बोर्ड में अपीयर रहा है। हालांकि मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को होमवर्क मार्क कर दिया है, विद आंसर आपको दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप ही करें, एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट। प्लीज टेक केयर द डिफरेंशिएशन ऑफ log 1 upon, remember the differentiation of tan secant square। अब t अपॉन 2 एंगल की डिफरेंशिएशन हाफ है, भूलना मत, करिए अप्लाई। cos की डिफरेंशिएशन, the differentiation of log, the differentiation of tan
देन डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, तो हाफ बाहर रहेगा, टी यहाँ होगा, ये 1 आ जाएगा। अब इन सब में जो है वो सारा कुछ कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो tan है इसे मैं लिखूंगा साइन अपॉन कॉस। secant square is a reciprocal of and 1 upon 2. If you cancel them, for your reference, again the formula of sin 2 theta is, आप इसे यहां डिनोमिनेटर में चेक कर सकते हो, 2 sin थीटा, तो ट्वाइस द एंगल करेंगे तो ये sin t होगा। अगर आप एलसीएम लेंगे तो आप 10th क्लास की टी रेशियो में आ जाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल जी, ये ए है। जहां तक y की डिस्कशन रही तो dy अपॉन dt वो सिंपल ही है। Now your question is dy upon dx. The parameter is t. So a cos t multiply with 1 upon a. After cancellation, tan t is your answer. 9th one is in your homework. Question number 10 आप करेंगे, लेकिन मैं आपको ये यहां याद करवा दूं। Here is a product rule. Remember, x का पैरामीटर थीटा है, y का पैरामीटर भी थीटा है, और यहां पर भी प्लीज प्रोडक्ट रूल। एंड मैं यहां एरो लगा दे रहा हूं। प्रोडक्ट रूल लगाने से पहले प्लीज अप्लाई द ब्रैकेट, क्योंकि नेगेटिव बाद में सभी साइंस को चेंज करेगा। माइनस, टेक अ हेल्प ऑफ अ ब्रैकेट, देन अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, क्योंकि नेगेटिव से साइन चेंज होंगे। फाइनली योर आंसर इज tan थीटा। dx upon d theta, the differentiation of cos plus product rule, u differentiation of v plus v, the differentiation of u। ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कैंसिलेशन के बाद ए थीटा कॉस थीटा। चेक करिए कहाँ गलती हो रही है जी। dy अपॉन डी थीटा, द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस, मैंने कहा था ब्रैकेट की हेल्प ले लेना। u differentiation of v, mean the differentiation of cos is minus sine cos, and then the differentiation of theta is 1. Now we close the bracket. So therefore dy upon d theta a cos theta plus theta sin theta minus cos theta, they will cancel. So dy upon d theta is equal to a theta sin theta। आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा dy upon dx। Now the next one, last and important, from your NCERT, parametric. Yes, if you do it in a simple way, important टैग कर लें इसे, और कुछ नहीं तो पेपर में आपका टाइम ज्यादा ना लगे, इसलिए डिस्कशन में इसे ऐड किया है, और इम्पोर्टेंट भी इसीलिए है ये। अगर आप इसे सिंपल डिफरेंशिएट करते हैं तो ये अनलिमिटेड लेवल तक आपको खींच के ले जाएगा। और ऐसा आपको, ऐसा नहीं मैं ही बता रहा हूँ, आपको बहुत सारी बुक्स और हर काफी जगह पे इसका ऐसा सोल्यूशन दिखाई देता है। जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो किया उसका नतीजा है ये। मैं इसका एक यहाँ पे रख देता हूँ, आप ऐसे नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब हमने की थी तब साइन
inverse of x, the formula sine inverse of x plus cos inverse of x is equal to pi upon 2. And this you will get if you multiply first and second. So x into y under root of and under root of, ये तो पता ही होगा, bases are same, powers are, so when you add them this will become right. अब आप चेक करिए, इसमें से पैरामीटर ही रिमूव हो गया, ये एक सिंपल डिफरेंशिएशन बन गई जिसमें आप सिंपल प्रोडक्ट टू लगा सकते हो, एक्स यू डिफरेंशिएशन ऑफ v, पैरामीटर की जरूरत ही नहीं क्योंकि t है नहीं, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, y एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x जो कि 1 है और कांस्टेंट 0 है, शिफ्ट करिए, y in your right hand side is minus y and dy upon dx is minus y upon x रूट. मैंने राइट में रख दिया है, पेपर में ना याद आने पे टीचर की इंटेंशन बड़ी क्लियर होती है, ये इसी तरह की टिपिकल डिफरेंशिएशन में आप उलझ जाएंगे. आंसर में कुछ मना नहीं, आंसर जरूर आ जाएगा वैसे भी. क्लियर रहेगा जी. y is equal to x cube, differentiate with respect to x, अगेन विद रिस्पेक्ट टू x. ये आपको कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चंस मिलते हैं जी, व्हेन यू अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये dx होल स्क्वायर वहां याद रखना है, ये अलाउड है आपको लिखना dx स्क्वायर. ओके ओके जी, नाउ वी स्टार्ट द डिफरेंशिएशन. फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या आएगी विद रिस्पेक्ट टू x, and again differentiate with respect to x, d square y dx square 6x, first with power and then the differentiation of base is good. एक छोटा सा जंक है डबल डेरिवेटिव में आपके पास इन कुछ क्वेश्चंस का, बहुत ज्यादा हम इन पे टाइम नहीं रोकेंगे, आप होमवर्क से क्या करना है वो आप देखेंगे. आई एम इंटरेस्टेड इन क्वेश्चन नंबर 3rd, 5th, 8th एंड 10th. यस, रेस्ट आप ले जाइए, कोई खास नहीं है, आप इन पे मुझे दिखा दीजिए आपके पास क्या आंसर आते हैं डबल डेरिवेटिव. जिसका नहीं आएगा मैं आपको सॉल्व करके देता हूं, और आप बाकी के भी घर में करना चाहते हैं तो पेजेस प्लीज लीव कर दें अपने रजिस्टर में, अदरवाइज मोर देन सफिशिएंट है ये 4 एज अ प्रैक्टिस. आंसर फर्स्ट इज only 2. Answer second is 380 x raised to power 18. थर्ड जिसे आप निकाल भी रहे हैं अभी, his answer is in bracket minus x cos x plus 2 sin x. चेक कर लें अपने पास. Answer 4 which is in your homework is minus 1 upon x square. आंसर ऑफ फिफ्थ जो अभी आपने निकालने की बात की है दैट इज x square plus 3x square log x. सॉरी आंसर गलत लिखा गया. द आंसर इज ब्रैकेट x and bracket 5 plus 6 log x.
Answer for the sixth one is e raised to power x 5 cos 5x plus sin 5x. So in actually, 3x plus 6 log x into x plus level is at 2x plus log x. 5x plus 6 log x into x. Answer 7. That's over there. This one is answer 8. Answer 9. And finally your answer 10. Yes, now you can raise your doubt. आप किसे कर रहे हैं और किस में आपका आंसर नहीं आया, पूछिए. In which the first of all is your example 38. आप इन्हें इनवर्स के साथ देखेंगे और स्क्वायर साथ में देखेंगे. When you differentiate it, the differentiation of sine inverse is, आपका फोकस यहां रहना चाहिए और इन क्वेश्चन को इजीली करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन आफ्टर दैट यू विल डू द डबल डेरिवेटिव. अदरवाइज आप इस डिफरेंशिएशन में उलझ जाएंगे. अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और प्लीज ध्यान दें कि यहां पर अब आपका प्रोडक्ट रूल है, d upon du differentiation of v plus v differentiation of u and constant की 0. ओके, ये डबल डेरिवेटिव हो गया, ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा है. एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट? 1 by 2 root. मैं स्टेप को सीधा ही कर दे रहा हूं. 1 0 और ये -2x. 2 and 2 विल कैंसल, एलसीएम लीजिए. स्ट्रेट फॉरवर्ड आप अपने प्रूफ में होंगे. 2 से 2 कैंसल है. क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका रिजल्टेंट प्रूव्ड आएगा. एनसीईआरटी में ये एक क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व एग्जांपल है, और दूसरा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है, द एक्सरसाइज 5.7. आप ट्राई करिए, सेम मेथोडोलॉजी, सेम पैटर्न, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले ही अटेम्प्ट में, जो डिनोमिनेटर है उसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. यहां पहले पावर की डिफरेंशिएशन है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स है. And by this rule, product rule, u
differentiation of v plus v differentiation of u. Tan inverse की differentiation and again the cross multiplication. नेक्स्ट स्टेप में करना चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में कर दीजिए. ये डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स द डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 और ये 2x अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. डबल डेरिवेटिव को अभी बताया था y2 भी लिखा जाता है. The dy upon dx is also written as y1 equal to 2, your answer. Next is आपकी एनसीईआरटी बुक में काफी क्वेश्चंस शो दैट पे हैं, जिसमें से कंप्लीट यस क्या कहना है इस पे आपका पहले, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सिंपल डिफरेंशिएशन है, आप अपने सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे 36 पे. जरा एक बार ट्राई कर लीजिए. स्टाइल तरीका. So when you differentiate it, 3. What is the differentiation of exponential? Then differentiation of power? 2. Good. The differentiation of exponential. And then the differentiation of power. So finally this is dy upon dx is 6 e raised to power 2x, 6 e raised to power 3x. Double derivative is there, so therefore you again differentiate with respect to x. Okay, the differentiation of exponential and then power. The differentiation of exponential same, the differentiation of power. This will become 6 into 2, 12 and 6 3 the 18. आप ये सजेस्ट नहीं कर सकते कि मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो आप अगर नहीं हो पाया तो आप यही लास्ट करेंगे. और अगर हाँ जी कोई और वे आउट है? Twelve is written as 30 minus 18 and 18 is written as 30 minus 12. ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 5 और ये जितना भी डबल डेरिवेटिव डिफरेंशियल है ये विद रिस्पेक्ट टू 6 है. तो अगर हम इसे फाइनली देखें तो ये 30 को सपोर्ट करेगा. मीन 30 e रेज टू पावर 2x माइनस 18 e रेज टू पावर 2x. अगेन नेक्स्ट को मैं लिखता हूं 30 e रेज टू पावर 3x और ये आएगा माइनस 12 e रेज टू पावर 3x. अब आप स्क्रीन पे ही देखेंगे और यहीं से ही से समझेंगे. ये 30 में से अगर आप 5 कॉमन लें तो चेक क्या आएगा? इक्वेशन फर्स्ट आ गई. नेक्स्ट, और हम यहां से 6 कॉमन ले लें तो कितना बचा? ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आई, ये आपकी
सेकेंड आई, तो आप इसे सेकेंड से dy अपॉन dx एंड फर्स्ट, जगह नहीं है आप इसे फिल कर लेंगे। नहीं, और तरीका ये है कि अगर आपको तब नहीं याद आए तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, आधा मार्क्स के करीब चाहे तो वो डिडक्ट करेगा, वरना नहीं भी करे, वो उस पर डिपेंड करता है। आप फाइनली वैल्यू पुट करके दिखा सकते हो। होगा मतलब हाँ जी, नहीं अगर आप इसे सिंपल डिफरेंशिएशन करें, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, और अब अगर आप इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, माइनस कॉमन लीजिए, आप चेक करिए आपका y ही वापस आ रहा है ऊपर, जिसे बाद में आपने नेम ही करना है बस। शो दैट नहीं है, ये प्रूव है। चले आगे, नेक्स्ट। This one is in your homework from the exercise question number 13. 5.7 exercise चल रही है मिस। होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 12, इसे कर जरूर लेना जी। आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा, इन टर्म्स ऑफ वाई आंसर देना है। सो इन टर्म्स ऑफ वाई आंसर कैसे आएगा? देखो इतना उलझना क्यों है, आप सिंपल ही कर दो कि इन टर्म्स ऑफ वाई देना। तो अब किसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू वाई। चलिए dx अपॉन dy डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, ध्यान देना उसने डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर पूछा हुआ है, क्या करोगे? रेसिप्रोकल ले लो, इतना क्यों सोच रहे हो आप उसे? तो क्या बन गया वो डी वाई अपॉन डी एक्स और साइन का रेसिप्रोकल। अब किसकी डिफरेंशिएशन, किसके विद रिस्पेक्ट टू? आई होप सो आप मुझे सही आंसर देंगे। ओके, विद रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएशन है राइट में? कोसिकेंड की डिफरेंशिएशन क्या बताई? मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे बोलने के बाद भी भूल जाएंगे। यस, एंड व्हाट इज dy अपॉन dx फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट? ओके, क्या क्या है वैल्यू बताएंगे आप मुझे फिर से? आई एम आस्किंग dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। हाँ जी, दो कोसिकेंट हो गए। चलिए होमवर्क में तो रहा ही नहीं, आपने करी। नेक्स्ट, cos की डिफरेंस, सॉरी, द डिफरेंशिएशन ऑफ log x is 1 upon x, again the rule is same, क्रॉस मल्टीप्लाई। बिल्कुल करना है, मैंने कहा था डिनोमिनेटर में किसी भी वैल्यू को कैरी नहीं करना होता। cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और आरब अभी पता लगा था कि log x 1 अपॉन x, साइन की डिफरेंशिएशन cos और log x, यस, x क्रॉस मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना कभी डबल डेरिवेटिव में, एलसीएम x आएगा, और जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो दिस लुक लाइक दिस। अब जब आप द्वारे डिफरेंशिएशन करोगे तब भी आप याद रखें कि जो डिनोमिनेटर में x आएगा, आफ्टर टेकिंग एलसीएम उसे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आपके पास एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है डबल डेरिवेटिव के साथ। आ गया?
बट ध्यान रहे कि लेफ्ट में आपका प्रोडक्ट रूल है, u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, ये मत भूल जाना जी। द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एंड log x 1 upon x, the differentiation of cos and log x is 1 upon x. Again this x will cross multiply after taking LCM. वो इतना सिंपल है, आपको पता होगा कि कुछ भी नहीं है, सिंपल डायरेक्टली भी आप उसे लिख सकते हैं। When you take negative as a common, then you will see कि आपका क्वेश्चन ही आपके पास वापस आ जाता है जो टॉप में आपने पिक किया था, जिससे आप बाद में माइनस वाई लिख के यू शिफ्टेड टू योर। मैंने इसे इतना कंप्लीट नहीं किया है, आप इसे कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। एक कंप्लीट पेज इनके लिए छोड़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम योर एक्सरसाइज 5.7। अगर अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो ठीक है, वरना एक पेज छोड़ दीजिए, पीडीएफ से बाद में कैरी कर सकते हैं आप इसे। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 16। इंपॉर्टेंट टैग करना है इसे, एग्जाम में कईयों को ये परेशान करता है जी। अब की बात अलग है, अभी आप जब क्लास में कर रहे हैं तो कुछ अलग है, क्योंकि आपके पास डाउट पूछने के लिए भी कोई है या सॉल्यूशन देने के लिए भी। देखिए, अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन जैसे ये है, अगर आप इसे ऐसे करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी। e की पावर y भी, और अगर आप इसे शुरू से ऐसे करें तो ये जरा ज्यादा कंफर्टेबली अपना आंसर देगी। और थोड़ा इसे कंफर्ट लेके जाना बच्चे, तो आप इसे क्वेश्चन टूल में ना उलझ के अब अगर आप स्टार्ट करें तो ये ज्यादा बेटर आपके पास रहेगी, वरना प्रोडक्ट रूल में आपके पास स्केयर आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रह जाएगी। और ऊपर से ये प्रूव दैट भी नहीं है, मैं सच बताऊं, ये शो दैट है। और अगर आप ऐसे इसे किसी और मेथड से भी करें तो कोई मना नहीं है, मतलब किसी और मेथड से भी आप आंसर दे सकते हैं, बिकॉज इट इज सिंपली शो दैट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी दे सकते हैं। यस, एक और तरीका लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। थोड़ी ये सब कुछ फिर लॉग ऑफ ई रेस टू पावर वाई, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 रेस टू पावर माइनस 1, ये आया y लॉग ई टू द ई 1 होता है माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1। अब आई थिंक आपके लिए ये ज्यादा आसान है। अब करिए डिफरेंशिएट, dy अपॉन dx, ये आ गई। देन डिफरेंशिएशन ऑफ अ बेस, x की डिफरेंशिएशन 1 और 0। आप इस पे डबल डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना आप इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या आप कह भी सकते हैं कि क्योंकि मुझे शो दैट करना है, तो आप इसे शो कर भी दीजिए कि इसका होल स्क्वायर क्या रहेगा, -1 स्क्वायर ये रहेगा, और दिस इज। आइए डबल डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो dy अपॉन dx आपके पास था -1 अपॉन x प्लस 1। आप इसमें क्वोशंट रूल ना लगाएं, इसके लिए बेटर है कि आप इसे न्यूमरेटर में ले जाएं, और यहां पर आप इसकी अगेन डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो ये आया n रेज टू पावर n माइनस 1, x की 1 उसकी 0, तो ये आ गई 1 अपॉन, आप चेक करिए दोनों इक्वल हैं। क्लियर, आप बोथ को लिख के प्रूव कर सकते हैं।